وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، ہمارے ایک حضرت نے مفتی عمیر قاسمی کو کال کیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ کس طرح کا انداز ہے پتہ نہیں، یہ کہاں پڑے ہوتے ہیں، یہ مفتی ہوتے ہیں یا مفتی ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کسی نے کال کیا ہے تو کس طرح بات کرنی ہے، کس انداز میں بات کرنی ہے۔ ان کو بات کرنے تک کا جو ہے طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں یہ، اور میرے نام کو سن کر اس پہ زلزلہ طاری ہو گیا، بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، کہنے لگا کہ میں جاہلوں سے بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ اپنے دعوے میں بالکل ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ کون کہتا ہے یہ جاہلوں سے بات نہیں کرتا ہے؟ شروع میں تو بہت خوشی کے ساتھ آیا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے گھر میں کتنے عالم ہیں، اس کی جماعت کے لوگ کتنے عالم ہیں، اس کی تبدیلی جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں کیا وہ سب عالم ہیں؟ چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا مفتی عمیر قاسمی تجھے، اور تیری ماں نے اگر تجھے حلالی نطفے سے پیدا کیا ہے نا تو تم مجھ سے بات کر کے دکھا دے کسی بھی عقیدے پر۔ ٹائم بھی تیرا ہوگا، ٹاپک بھی تیرا ہوگا، تو چن لے اور مجھے بتا دے کہ میں اس ٹاپک پر تجھ سے بات کروں گا۔ اگر علمی بات ہو، علمی گفتگو ہو تو تم مجھ سے بات کرنا، ورنہ فون کاٹ کے چلے جانا۔ مگر الحمدللہ دنیائے دیوبندیت کو میرا چیلنج ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہاری اوقات کو، میں جانتا ہوں تمہاری حیثیت کو۔ تم پڑھے لکھے نہیں ہوتے، صرف پڑھے رہتے ہو، پڑھے، ٹھیک ہے؟ بے جاہل، تیری اوقات اس کو بتانا جو تیری اوقات کو جانتا نہ ہو، سمجھا؟ اور کہہ رہا ہے کہ میں جاہلوں سے بات نہیں کرتا۔ خیر، اس گفتگو کو آپ حضرات غور سے سنیں، پورا سنیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ان دیوبندیوں کی مکاری کو ضرور دیکھیں۔ اور میری گفتگو میں، ہر گفتگو میں کوئی نیا پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی نئی بات ہوتی ہے، کوئی نئی گفتگو ہوتی ہے، اور ان دیوبندیوں کا بے نقاب چہرہ دیکھنے کے لیے نور حسن رضوی نیٹ ورک کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ان دیوبندیوں کی جو اوریجنل حقیقت ہے، جو ان کی سچائی ہے، میں اس کو بے نقاب کرتا ہوں۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ مولانا عمیر قاسمی صاحب، ہلو جی، السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ ہاں، اصل میں نے آپ کو فون کیا تھا، غالباً اس وقت آپ گاڑی چلا رہے تھے، ہے نا؟ ہاں جی، بولیے۔ یاد ہوگا نا، میں نے اپنا بتایا تھا، میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، نام میرا آپ پوچھیے، آپ تو بتائیے کس لیے فون لگایا، وہ کیا ہے، آپ کیا مجھے اس سے کیا بتا؟ نہیں، مطلب بھائی میں اپنی پہچان بتا رہا ہوں، کیا پہچان بتانا یہ غلط تو ہے نہیں؟ بتا دینا، بتا دیے، آپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بتائیے نام کیا ہے آپ کا؟ جی، میرا نام طفیل ہے۔ ٹھیک ہے، بولیے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ ویسے رہنے والا میں یو پی لکھنؤ کا ہوں، لیکن اس وقت فی الحال میں ممبئی میں ہوں۔ ٹھیک ہے، فرمائیں۔ ہاں، اصل میں کچھ سوالات ہمارے ساتھ ایک لائن پہ جڑے ہوئے ہیں، نور حسن بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ شاید آپ سے کچھ آپ سے سوالات کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اس سے سنیے جی نور حسن بھائی کون نور حسن؟ یہ نور حسن جی، نور حسن میں بول رہا ہوں، جو آج سے کم سال بھر کے آس پاس کی بات ہو گئی ہوگی، جو فاروق صاحب نے جو بات کرائی تھی نا
उमर फारूक साहब। उमर फारूक साहब कौन? हाँ, उमर सिद्दीक, जो इल्म गैब के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई थी। जी जी, पहचाने कि नहीं? हाँ हाँ बोलो। अब पता नहीं कितने लोग बात करते हैं, मैं पहचान हाँ, नहीं इसमें कोई नहीं, अरे नहीं, आप तो ऐसे मतलब बिला वजह तो मैं तो थोड़ी सी बात, आदमी क्या आपसे कुछ जानकारी नहीं ले सकता है मुफ्ती साहब? नहीं ले सकता है, लेकिन आपका रवैया, कहीं जाने की तैयारी में हो, जो बात पूछना है जल्दी हो। अगर आपके पास वक्त नहीं तो आप ये कह दें कि वक्त नहीं, बाद में कॉल कर लो, आदमी बाद में फोन कर लेगा। ठीक है, तो कब बात करेंगे मुफ्ती साहब? हाँ, क्या मतलब कब बात करेंगे मुफ्ती साहब? जब मेरे पास वक्त मिल जाएगा तब बात कर लूंगा। तो मैं बता दीजिए। आपको एक होता है ना कि आपके पास कोई वक्त होगा तो उस वक्त आदमी फोन कर ले, फजर बात कर लें, फौरन फजर के बाद फौरन कर लें। अच्छा, फौरन बाद फजर बात कर लें, है ना? जी जी ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर 5:30 बजे नमाज है, 6 बजे तक हम फारिग हो जाते हैं, आप 6 बजे के बाद कॉल कर लें, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद कब तक जैसे बात कर सकते हैं? 1 घंटे तक। अब वो तो उनके पास जो 1 घंटा, अब उनके जो औकात होंगे उन्हीं औकात में देख करके आदमी वक्त निकाल करके बात कर लेगा, ये तो अलग चीजें है कि नहीं। बस वैसे हम अगर 1-2 मिनट की बात हो तो मैं फ्री बात कर सकता हूँ, अगर वक्त हो तो 1-2 मिनट तो दे ही सकते हैं मुझे आप। हाँ बोलिए। हाँ, बाद में कल हम उसको वो देख लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो मौलाना अहमद रजा की तकफीर आप लोग करते हैं, है ना, तो मौलाना अहमद रजा की तकफीर क्या अपने अकाबिर की रोशनी में करते हैं मौलाना? हाँ, हम तो मौलाना अहमद रजा की तकफीर क्या कहते हैं, अपने अकाबिर की रोशनी में। तकफीर अकाबिर की रोशनी में थोड़ी की जाती है। क्यों? आपकी अकाबिर की रोशनी में तकफीर कब की जाती है? क्यों नहीं की जाती? अगर आपके अकाबिर अच्छा, तो मैं आपसे इस पर सवाल करता हूँ, अहमद रजा साहब ने जो तकफीर की है हमारे अकाबिर की, वो किसकी रोशनी में की है? नहीं, वो तो उनके उसूल, उनके फतवे और उनकी तहरीर के बिना पे की है। तो बस ऐसे ही हम भी आपके जो अहमद रजा साहब के उसूल और फतवे हैं उसी की बिना पर करेंगे। बिल्कुल तो ये आपके उलमा ने अगर उनको मुसलमान माना है इस तहरीर के बाद भी, तो फिर आपको हक बनता है ना कि तो आप आपके उलमा ने भी अगर इस तहरीर के बाद हमारे अकाबिर को मुसलमान माना है तो फिर कौन, किसके उलमा ने? हमारे उलमा ने। हाँ, आपके उलमा ने, बहुत सारे उलमा हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जो आपके अकाबिरीन देवबंद है उनको मुसलमान माना है? जी। अच्छा, कि यहाँ तक लिखा है कि जो इनको मुसलमान ना माने, अगर इन 3 को मुसलमान ना माने तो कोई भी मुसलमान नहीं, यहाँ तक किताबों में आपके लिखा हुआ है। हाँ, जैसे मैं आपके तीनों में कौन कौन नाम बता सकते हैं मौलाना सराहत के साथ? तो मौलाना खलील, जी, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक, बस एक का बता दिया, अभी एक का ही याद आ रहा है। अच्छा, मौलाना थानवी साहब हो गए, मौलाना गंगोही साहब हो गए, या मौलाना खलील सहारनपुरी साहब हो गए। किसकी तकफीर करते हैं आप? किसकी तकफीर करते हैं? हम देखिए, तकफीर तो मैं आपके उलमा की जो तकफीर आएगी वो हम हुस्सामुल हरमैन से साबित करेंगे, लेकिन आप जो हमारे आलिम मौलाना हुस्सामुल हरमैन से अगर आप साबित करना चाहते हैं बताइए। गंगोही की तकफीर मैंने कहा देखिए, बात पहले पूरी सुना करें ना। आप तो आपने बोल दिया तो अब मुझे भी बोलने का मौका देना। शुरू में सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। शुरू में आपने ये बात कही थी कि भाई मैंने कहा क्या रोशनी में करते, मैंने उस पर सवाल किया कि अहमद रजा साहब, मुफ्ती उमैर साहब, मैंने क्या कहा? मैंने आपके उलमा की तकफीर की बात नहीं, मैंने मौलाना अहमद रजा की तकफीर की बात की है। वो आपके उलमा की रोशनी में। पर मैंने एक सवाल किया, उसी में जवाब है ना? तो उसमें क्या जवाब? आपके उलमा तो अच्छा, चलिए, आपके मौलाना आप सवाल सुनिए, फिर से आप सवाल करिए और मैं फिर से आपसे सवाल करता हूं, अगर जवाब ना मिले तो बताइएगा। अच्छा, ये बताइए, फिर से सवाल कीजिए। अच्छा, चलिए, मैं एक बात मेरी सुन लीजिए मौलाना उमैर साहब। जो मैं एक सवाल करता हूं, इस सवाल की दफा आप कर सकते हैं, जो मैं दलील पेश कर रहा हूं उसकी दफा अगर मैं आप कर सकते हैं तो आप करिए, और इसके बहुत आराम से, मतलब इसमें ये नहीं आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल असल में बेजा सवाल आप कर रहे हैं ना। अच्छा, दोनों ना एक सुने तो एक कहें, सुनिए, है ना, प्यार मोहब्बत से बात करें। एक आदमी बात कीजिए, नूर हसन साहब जी, वही बोल रहा हूँ कि आप दोनों भी जो है ना, कौन आलिम है? पहले आप ये बताइए, दोनों में से आलिम कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों साथ में ना बोले, बात समझ में नहीं आएगी, लोग ये समझेंगे लड़ रहे हैं। ऐसा है। देखिए उमैर साहब, आप थोड़ा, जो मैं तकफीर की जहाँ तक बात आपने कही कि आप पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप दोनों में से आलिम कौन है? मैं आलिम। अरे देखिए, आलिम होना अकायद को बचाने के लिए आलिम होना जरूरी है। सुने, आलिम होना जरूरी है अकायद को बचाने के लिए। अकायद को बचाने के लिए, अकायद अपने ईमान को दुरुस्त रखने के लिए आलिम का होना जरूरी है। अपने ईमान को दुरुस्त रखने के लिए यकीनन आलिम का होना जरूरी है,
आप तो मुफ्ती थे, अपने जमात के लोगों को काफिर साबित कर गए थे आप तो। मेरी बात तो सुनो यार, फिर यही बात हो गई कि आप दो लोग बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप दोनों क्या बोल रहे हो, एक आदमी भी किसी की बात नहीं सुन रहा। चलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आलिम है, आप मुझसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये क्या है, मुनाजरा कर रहे हैं, क्या नहीं, बात मैं कर रहा हूँ, और तो आपके जो बात कर रहे हैं, अगर तो आप बताइए, सुनिए, एक आलिम से एक आलिम बात करे वो मुनासिब है, या एक आलिम से एक जाहिल बात करे वो मुनासिब है, बताइए। नहीं, आप तो पहली बात यह है कि जाहिल कहने का पहले ये करेंगे, जाहिल नहीं, वो अकायद की रोशनी में अगर गुफ्तगू करता है तो उसे आप जाहिल नहीं कह सकते हैं। मौलाना उमर साहब, कौन अगर बात कर रहा है, अगर दलाइल के साथ बात हो तो ठीक है, वरना भाई आपसे बात, एक मिनट, नूर हसन साहब खामोश रहे, मैं आप एक मिनट मेरी बात सुने। मौलाना उमर साहब, अगर अकायद मेरी एक बात सुन लीजिए, एक आप बात कर रहे हैं और एक नूर हसन साहब बात कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, मेरी बात सुने, आप कर रहे हैं, आप उससे अगर अकीदे पे, अगर सुनिए, उनको जाहिल बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी बात, आप उन्हें जाहिल कहने का जो अकीदे पे गुफ्तगू करे उसे आप जाहिल कह सकते हैं क्या? नहीं भाई, मैं कहाँ उनको जाहिल कह रहा हूँ, तो मैं आलिम के मुकाबले में उनको जाहिल कह रहा हूँ ना, आलिम के मुकाबले में तो वो जाहिल है ही है ना। अरे तो अकीदे पे अगर गुफ्तगू करेंगे तो उतने का तो आप उसे आलिम मानेंगे ना कि अकीदे का वो आलिम है। अरे सुनो, जाहिल आदमी क्या अकीदा जानेगा, उसको हम जो बताएंगे वो मानना पड़ेगा ना। नहीं, वो गुफ्तगू करेगा मेरे से जाहिल, वो तो पढ़ जाहिल आदमी। मैंने सुनिए देखिए मुफ्ती साहब, ये रवैया आपका अच्छा नहीं है, बदतमीज बोल रहे हैं आप। जाहिल आदमी, खुदा के लिए आप खामोश रहे, मैं मौलाना उमर से बात करता हूँ। मौलाना उमर साहब, आप सुनिए, देखिए ऐसा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल, आप जो बात बोलेंगे, मैं, आप आलिम हैं, मैं बिल्कुल सुनूंगा उसको। हाँ, आप उसको सुने, आप उसको सुने और गौर से सुने। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर नूर हसन साहब अकीदे की गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, अकीदे के जानकार हैं, अकीदे का इल्म रखते हैं, ठीक है, अगर कहाँ का इल्म रखते हैं, का इल्म कहाँ पढ़ा उन्होंने, बताइए कहाँ पढ़ा, किस मदरसे से फारिग है वो, कौन सी किताबें अकीदे के ऊपर उन्होंने पढ़ी है, बताइए। अगर आपको एक मिनट वो हवाला दे, मेरी बात सुने, आपकी किताबों का एक मिनट, आप देखो, सुनो मेरी बात सुनो, आपने बोल लिया, मैंने आपकी सुन लिया, अब मेरी सुनिए आप। मेरा नंबर तुमने ब्लॉक लिस्ट पे क्यों डाला है भाई? मौलाना उमर साहब कोई किताब पढ़ी हुई, अरे सुनिए ना, उन्होंने कोई किताब पढ़ी होगी अकीदे की, किसी मदरसे में उन्होंने पढ़ा होगा, किसी के सामने जानवे तलब। अच्छा, किस अकीदे पर बात करेंगे? चलो छोड़ो, मौलाना साहब जरा इनसे पूछो किस अकीदे पर बात करेंगे, जो जिसमें इनको आसानी हो वो मुझसे चुन लें। मुझे बताएं किस टॉपिक पे बात करोगे, देवबंदियों को मैं चुनने का मौका देता हूँ, चुनो। मुफ्ती उमर कासमी, ऐसा है नूर हसन साहब, सुनिए, मैं मौलाना उमर साहब, मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने मुफ्ती उमर कासमी साहब, अकीदे का टॉपिक बताओ मुझे, मौजू भी तुम्हारा रहेगा, वक्त भी तुम्हारा रहेगा, फजर के बाद कॉल करूंगा, ठीक है, कौन उठा लेना मेरा। मौलाना उमर कासमी साहब, नूर हसन भाई, आप खामोश रहे। देखिए ऐसा है, इनको तैयार करो, इनसे पूछो कि किस टॉपिक पे बात करेंगे। वो ठीक है, अभी मैं इनको मैं कह रहा हूँ ना भाई, इधर खात्मा उमुल जाहिलून कालू सलाम। फिर वही बात, अगर तुम्हारी बात का जवाब इल्म से ना दिया जाए तो तुमको सुनो, अगर तुम कहते हो कि तुमको अकीदे का इल्म है, तुमने अकीदे का सब कुछ पढ़ा था, मुझे एक किताब का नाम बताओ, तुमने अकीदे की कौन सी किताब? तुम्हें और तुम्हारे थानवी साहब को काफिर करार दिया था ना तुमने ही अपने मुंह से। अरे कब मेरे से तुमने बात की थानवी साहब को? तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी क्या होती, तुम उनको? अरे तुमने काफिर साबित किया, मैं क्यों करूंगा? खाक के जर्रे के, अरे कितना बदतमीज आदमी है भाई। नूर हसन साहब, देखिए बात वो असल में मौलाना उमर ने पहले ऐसा है मौलाना, ये मेरे ताल्लुक से मेरा नाम सुनते ही देवबंदियत में जलजला पैदा हो जाता है। खुदा के लिए आप खामोश रहे। मौलाना उमर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मौलाना उमर कासमी, एक बात सुनिए, मौलाना उमर कासमी साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुदा के लिए बेजा गुफ्तगू आप वक्त न बर्बाद करें। एक बात तो सुनिए, आप मेरी एक बात तो सुनिए तुफैल साहब, जो आप बात कहेंगे उसमें वो पूछा, सुनिए ना, मैंने इनसे ये पूछा अकीदे की कौन सी किताब पढ़ी, तो उसका जवाब ये है कि मैंने थानवी को। अरे तेरी क्या औकात, तू क्या थानवी को काफिर करा देगा? अच्छा, मौलाना उमर साहब, चलिए यही से मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अगर आपके पास वक्त होगा तो इंशाल्लाह इसका जवाब अभी दे देंगे। आप 2-3 मिनट का, हाँ, जब आप मुझसे गुफ्तगू कीजिएगा, मैं जाहिल को मेरे मुंह मत लगाना, क्योंकि जाहिलों से बात नहीं करूंगा। अगर आप भी जाहिल हैं, आप बात नहीं करूंगा, और आप आलिम हैं तो यकीनन मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे मैं क्या आपको इल्मी सनद दूं, जो मेरी इल्मी सनद है, क्या मैं वो आपको दिखाऊंगा? आप कह रहे हैं कि आप आलिम हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो अब जो मेरे सवालात हैं उसकी दफा करेंगे ना। ठीक है मौलाना उमर साहब, मैं 1 मिनट बात करूंगा। हाँ, तो 1 मिनट, वही ये बेजा गुफ्तगू में वक्त बर्बाद हुआ ना। मैं आपसे 1 ही मिनट बात करना चाहता था, ये 1 मिनट में अगर आप 1 मिनट तो हो गई ना बात, 10 मिनट तो बात हो गई।
10 मिनट तो ये बेजा गुफ्तगू में जो मेरे सवालात है वो तो ऐसे रह गए, तो क्या मैं वो सवालात करने का मुझे हक देंगे? करिएगा इंशाल्लाह, सारे सवालात के जवाब आप देंगे। ये सवालात मैं जो मौलाना थानवी साहब के कुफ्र की बात और मौलाना अहमद रजा के कुफ्र की जो बात आपने, मैंने मौलाना अहमद रजा की तकफीर पे गुफ्तगू की थी कि वो आप अपने उलमा की रोशनी में उनकी तकफीर करते हैं। आपने कहा कि नहीं, वही आपसे सवाल ये किया था उस पर कि भाई तकफीर किसके रोशनी में होती है, आपसे मैंने पूछा था ना, बताओ ना। नहीं, आप एक बात बताएं, आपके अकाबिर आपके लिए हुज्जत है कि नहीं भाई? अरे हुज्जत है, बिल्कुल हुज्जत है आपके लिए, आपके अकाबिर हुज्जत है ना? तो अब अगर एक मिनट, तो अगर मौलाना थानवी अगर मौलाना अहमद रजा को मुसलमान कहेंगे तो क्या आप उनको काफिर कहने का आपको हक होगा? ये बताइए, मौलाना अहमद रजा को काफिर कहने का हक होगा? तो फिर अगर मौलाना थानवी अगर इसी पर तो मैंने आपसे सवाल किया था ना, वो वाला कि अगर आपके क्या कहते हैं उलमा जो है, अगर उलमा देवबंद को जिनको आप लोग काफिर आपके अहमद रजा ने कहा, अगर उनको कोई मुसलमान कहता तो उस पर आप क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे बताओ? हाँ, तो आप उसका हवाला पेश करेंगे ना? आपके नजदीक आपके उलमा हुज्जत है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हमारे उलमा हुज्जत है। हमारे वही उलमा अगर वो मुसलमान कहते हैं अकाबिर अरबा को, तो फिर आप क्या कहेंगे उस पर? मैं उस पर कुफ्र का हुक्म लगाऊंगा ना। आप उसको कुफ्र का हुक्म लगाऊंगा ना। आपके अकाबिर अरबा जो हैं, जो वो मौलाना थानवी हुए, मौलाना गंगोही हुए, मौलाना नानोतवी हुए और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हुए, ठीक है। अगर इनको आपके उलमा जो बता रहे हैं, जो आपके वो मेरे उलमा को बता रहे हैं कि आपके लिए हुज्जत है, बिल्कुल है हमारे लिए हुज्जत, हमारे उलमा। तो अगर हमारे उलमा मेरी बात सुने, मेरी बात पूरी नहीं, वो मेरी बात पूरी करेंगे ना। अगर जो इनको मुसलमान कहता है, हमारे यहाँ तो ये उसूल है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो काफिर है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो अगर कोई इनको मुसलमान कहता है, समझ रहे मेरी बात को, तो हम उसको काफिर कहेंगे। चलिए, अब आप उसका हवाला पेश करेंगे ना? चलिए ठीक है। अब आप कह रहे हो कि आपके यहाँ ये है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। हाँ, तो इस एतबार से तो मौलवी अहमद रजा साहब भी काफिर हो गए। देखिए, इस एतबार से फिर ये आपका उसूल, या आप अपने उसूल को क्यों फिर अपने आप तो ये अपना उसूल ला रहे हैं क्या? ये उसूल मौलाना थानवी या मौलाना गंगोही या और आपके अकाबिर अरबा के पास ये उसूल नहीं था जो आप इस उसूल को अभी आपने बात की, मैंने बड़ी आराम से सुनी। अब आप मेरी बात सुनिए। आप तो मेरे उलमा का हवाला देने की बात कर रहे थे कि हमारे उलमा ने हवाला दे रहा हूँ, सुनोगे तब तो। किताब का नाम बताया। जी बताएं। मौलाना तुफैल साहब, मैंने ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, मतलब ये वही उसूल है ना जो हुसामुल हरमैन में मन शक्क फी कुफरी व आजाद ही फकत कफर, जी यही है ना? हाँ। तो फिर इसी उसूल की रोशनी में ये जो आपके अहमद रजा साहब ने हुसामुल हरमैन में लिखा है, खुद अहमद रजा साहब काफिर हो जाते हैं ना? तो अब मैं आपको यहाँ से खामोशी से सुनिए, मैं आपको इस पर हवाला देता हूँ इसी उसूल के तहत। अच्छा चलिए, हवाला दीजिए, पहले हवाला दे लीजिए। हाँ, इसी उसूल के तहत मैं आपको हवाला, चलिए आप हवाला दे लीजिए, फिर उस पे उसकी दिफा होगी। पहले आप हवाला दीजिए। जी, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी। हाँ, हम जानते हैं क्या फतावा मजहरिया और अनवार मजहरिया की बात करें। इसके मुसन्निफ कौन है मौलाना काफी साहब? इसके मुसन्निफ कौन है? अरे बोल तो रहा हूँ, तब अनवार मजहरिया के मुसन्निफ मौलाना मजहरुल्लाह साहब हैं। अच्छा, और फतावा मजहरिया वो भी उन्हीं की है। अच्छा, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली क्या कहते हैं? उन्होंने मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली ने जो है इनको इसमें जो क्या नाम है उसकी, जिसुल ईमान की इबारत पर कुफर का फतवा नहीं लगाया उन्होंने। और मौलाना अहमद रजा साहब आपके जो हैं वो इमाम हैं आपके, तो आप इनको आला इबारत क्या है मौलाना उमर साहब? इबारत पढ़िए ना पहले, मुसन्निफ का नाम तो बताया मौलाना मजहरुल्लाह, और फिर वो फतावा मजहरिया के मुसन्निफ का क्या नाम है? हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था सुहैल साहब कि आप सुबह फोन कीजिएगा तो इंशाल्लाह बैठ के फिर किताब के हवालों के साथ। अब अभी मैं रास्ते में खड़ा हूँ। देखिए उमर साहब, आपने दो बात कही है, सुनिए, आपने दो बात कही है। इस पे तो पहले तो आप इस देखिए, मैं आपसे बात करूंगा, ये मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या इसी नंबर पे आपका व्हाट्सएप नंबर है मौलाना उमर साहब? कौन सा नंबर? मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपका बता रहा हूँ। आपका जो नंबर है वो क्या है? 9039 करके लास्ट में 50 है। हेलो, हाँ ठीक है, लास्ट में 50 है, ठीक है। इस नंबर पे आपका व्हाट्सएप है? हाँ है। मैं आपके व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट करूंगा। आप मुझे देखिए, मैं आपसे जो चीज का मुतालबा कर रहा हूँ इंशाल्लाह उसका मैं अब यहाँ से बात को क्लोज कर रहा हूँ, और जो मेरे मुतालबात है इंशाल्लाह आप उस मुतालबात को पूरा करेंगे। हाँ बोलिए। मेरा मुतालबा ये है, पहले तो आप फतावा मजहरिया और अनवार मजहरिया की ये दोनों इबारत को आप भेजेंगे, ठीक है?
नंबर 1। मैंने कब बोला कि दोनों किताबों में ये इबारत है? तो फिर किसमें है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अनवार मजरिया में गालिबन जी। अच्छा, अनवार मजहरिया में दोनों में है, जिस किताब में भी होगा वो हवाला भेज दूंगा। जिसमें आप, हाँ जिसमें है उसमें भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हमारे किस आलिम ने, हमारे कौन उलमा है जो आपके अकाबिर अरबा को मुसलमान मानते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ वो भी आप भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं आपके, ठीक है ना, ये दोनों मुतालबात, और मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ। किताब का नाम हवाले के साथ आप भेज देंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद कल बाद फज्र गुफ्तगू होती है, ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। हाँ नूर हसन भाई जी, कॉल कट गया उनका? हाँ कट गया। देखिए, ऐसे बात करने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है। ऐसे हो रहा है जैसे लड़ाई हो रही। नहीं, वो असल में देखिए मैं आपको क्या बता वो पागल कुत्ते की तरह बौखलाया हुआ है, और मेरा नाम सुनते ही दुनियाई देवंदियत में बौखलाहट का असर हो जाता है, पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात सुने। मैं बताऊँ नूर हसन भाई जी, देखिए, ये आपसे जैसी वो आप उससे बात करते फोन काट लेता, बात समझ रहे हैं जी। मैं क्या कह रहा था, इससे हमें जैसे बात किया, समझ रहे हैं ना। तो आपके जो मौजूआत हैं, बात समझ रहे हैं, जो आपके मौजूआत हैं, जैसे मैंने इससे जितनी बातें कही, अब ये बताइए कि क्या हमारे उलमा की किताब से साबित कर पाएगा कि मौलाना अहमद रजा काफिर? कुछ नहीं, आला हजरत पर एक जरा सी भी आंच नहीं आती है। आप एक मिनट, ये तो अच्छा, क्या हमारे उलमा, आप ऐसा मान सकते हैं कि हमारे उलमाए अकाबिर ने क्या नाम है, इनके अकाबिर अरबा को मुसलमान कहा हो? आप हमारे जो मुस्तनद आलिम हैं, जिनको हमारे अकाबिरों ने मुस्तनद आलिम माना है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि इन काफिरों को मुसलमान माना हो। थानवी, ननौतवी, अमेठवी, गंगोई, हाँ, तो और ये खलील अहमद अमेठवी, सहारनपुरी। देखिए ये सारी चीजें, ये बात तो हो गई, समझ रहे हैं जी। अब उसके बाद ये हुआ कि अब ये, और ये बात रखना है, हमारी ही मुस्तनद किताबें होनी चाहिए और हमारे मुस्तनद आलिम होना चाहिए। ये बात कहना ना भूलें आप। हम उसको पहले ही हम ये कर देंगे, समझ रहे हैं जी। हम वो पहले ही ये कर देंगे, और उसको हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे अभी ये गुफ्तगू हुई, समझ रहे हैं, ये आपने रिकॉर्ड किया है ना? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ, तो इसको क्या करना है, लगाना है यूट्यूब पे? हाँ, बाद में डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये फिर आएगा कि भाग जाएगा साला, ये हमको देखो, ये पागलपन के दौरे इस पे पड़े हुए हैं, ये पागल कुत्ते की तरह बौखलाया हुआ है, ये बात नहीं कर पाएगा। समझे हजरत? मेरा नाम सुनते ही इसको 11,000 की लाइन का करंट लग गया, और कहने लगा मैं नहीं जानता। हालांकि ये मुझे कयामत तक भी नहीं भूलेगा। समझे हजरत? ये मुझे कयामत तक नहीं भूलेगा, क्योंकि इसने मेरे नंबर को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अच्छा, ये मौलाना अशफाक साहब से इसी का मुनाजरा हुआ था क्या? जी जी, ये वही हरामखोर है जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को सड़ा हुआ इल्म बताया था। अच्छा, ये वही शैतान है, कालिया भंडारी। अच्छा, मौलाना वो मुनाजरे में शिकस्त पा गया था क्या ये? हाँ, और लड़के भागा था। हाँ जी। गालिबन आपने, और ये है कहाँ का सूअर? ये बिहार का रहने वाला है और इंदौर में रहता है। अच्छा, ये इंदौर में रहता है? जी, मैं रग रग से वाकिफ हूँ हर एक ऐसे खबीसों की। अच्छा। ये मुझसे जब से बात नहीं करता है। मैंने जो इसको धोया था ना इल्म गैब के ताल्लुक से, मैंने कहा भाई, जब मैंने कुरान के खिलाफ बात कही, तो थानवी जी ने तो वही बात कही है। थानवी जी भी तो कुरान के खिलाफ बात कह के काफिर होंगे। हम वो आपकी मैंने वो आपका मुनाजरा सुना, समझ रहे हैं? अच्छा, सुना है? हाँ, वो मैंने वो असल कौन पूरी गुफ्तगू सुनिए कि 28 मिनट की? देखिए उसमें आप 18 मिनट की। हाँ, वो मैंने सुना, उसमें आप गालिब आ चुके हैं, लेकिन जानते हैं वो उसमें जिसमें उमर सिद्दीक है ना, उमर सिद्दीक जिसमें वो बात करा रहा है ना, उमर सिद्दीक। देखिए उसमें एक चीज याद करिए, मैं आपको बताऊं जरा सा, आप थोड़ा सा नूर हसन भाई, आपके बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा है, बात समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक होती है आपसे, बताऊं क्या? ये जैसे जो आप इन लोगों से जो भी मुतालबा करते हैं, मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है, पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है, जिसमें वो रूहुल मानी को पेश किया था ना। हाँ, जिसमें तफसीर रूहुल मानी को पेश किया था ना। जी। और फिर वही तफसीर रूहुल मानी को बयान करने के बाद बरेलवियों के मौक़िफ़ पे आ गया। हाँ, तो मैंने इससे कहा भी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप, और ये तो माशाल्लाह हमारे हक में आप बोल गए। इसमें होता क्या है जानते हैं? उसने कहा कि देखिए कश्फ के जरिए या अता अल्लाह जो है वो अपने खास बंदों को ये अता कर देता है, समझ रहे हैं, या ये दे देता है। तो आपने कहा भी कि वो वही चीज होता है, समझ रहे हैं ना, कि अल्लाह तबारक व तआला जो अता करता है नबी को, हम वही इल्म गैब नबी को मानते हैं। ये बात तो दुरुस्त है, आपने बात इसने उस ऑडियो में 26 झूठ बोले हैं हजरत।
تو اس گفتگو میں پوری گفتگو میں اس نے 26 جھوٹ بولے ہیں. پہلا جھوٹ تو اس نے یہ بولا کہ میں علم غیب عطائی کا قائل نہیں ہوں, علم غیب ذاتی کا قائل ہوں. پہلا کفر تو اس نے یہ کیا. دوسرا اس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے. علم غیب حاصل نہیں ہے. تو میں نے کہا جب حضور کو حاصل نہیں ہے تو حضور کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے؟ تو بولا نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو اس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اصل میں وہ ریکارڈنگ میرے پاس نہیں ہے جو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں آپ. اچھا, اس میں وہ باتیں نہیں ہیں, باتیں صرف وہ اس میں ادھوری باتیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب کس کے چینل سے سنی ہے آپ نے؟ ایک منٹ رکیے میں دیکھتا ہوں, اس لیے کہ وہ بات میں نے سنی ہے اور اس میں تفسیر رول مانی کی جو بات ذکر کیا وہ لاسٹ میں ہے, وہ لاسٹ میں اسے سنائیے. ہاں تو شروع والی وہ ریکارڈنگ میرے پاس آپ نے نہیں بھیجی حضرت. نہیں تو وہ دیکھیے یہ جو میں نے بھیجی ہے آپ کے پاس ایک, تو یہ شروع کی ہے جس میں عمر صدیق جو ہے وہ لائن پہ ہے. یہ مفتی عمیر قاسمی جو ہے یہ ہے, میں بتا رہا ہوں کتنی دیر کی ویڈیو میں ابھی بتا دے رہا ہوں آپ کو. یہ ہے 18 منٹ کی تو نہیں ہے. 1 منٹ 276 ویورز ہیں اس کے, 18 منٹ 53 سیکنڈ کی ہے. اچھا اچھا اچھا, تو یہ نہیں ہے, یہ تو شروع کی ہے جو یہ فون کاٹ کے بھاگ گیا ہے. ہاں, جس میں اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کا فون آئے گا تو میں بات کروں گا, آپ کو ضرور نہیں سمجھوں گا, ہے نا؟ ہاں میں دے رہا ہوں, اس کا پورا ویڈیو اٹھا کے دے رہا ہوں حضرت, اس کو پورا سننا. ہاں تو ایسا کریں کہ وہ ذرا شروع سے بھیجیں, سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں, اور اس سے بات کرتے ہیں. اصل میں نے وہ ویڈیو وہ میں نے دیکھا اور اس میں نے لاسٹ میں ہم سے یہی ہوا. اور پھر دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کس سے کس کا مناظرہ ہوتا ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے پوچھ لیا, یہ آپ ہماری جماعت کے ہیں, ٹھیک ہے, معتبر آدمی ہے نا؟ جی. تو میں نے آپ سے ذکر کر لیا کہ آپ کا مناظرہ, یہ اس کا مناظرہ جو ہے کیا مولانا اس سے ہوا تھا, کیا نام ہے مولانا کہ مفتی عمیر قاسمی؟ نہیں, مولانا عمیر کا مناظرہ کس سے ہوا تھا؟ اچھا, مولانا اشفاق صاحب کی سے. مولانا اشفاق صاحب سے. تو اس کا ذکر ہم نے ایک نیٹ ورک اور ہے جس میں 11,000 کچھ لوگوں نے دیکھا ہے. اچھا, اعلیٰ حضرت اون حق چینل کا نام ہے. اعلیٰ حضرت اون حق, اس کا لنک ہاں, اچھا وہ بھی بھیجے دیتا ہوں, اور جو میرا چینل ہے اس پہ کا بھی بھیجے دیتا ہوں. اچھا, آپ